السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواہ الامام الحمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کی ڈبلنگ بند نہیں کرتے، سادہ ہو، بالکل ڈبل آواز نہ آئے، سنگل آواز ہو۔ ہاں ایکو بند کرتے ہیں، جزاک اللہ، ٹھیک لفظ ہے۔ معزز دوستو، آج یہاں باڑیاں علاقہ میں مری حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور 7 مئی 2021 تاریخ بھی ہے، جو اب 8 مئی 2021 میں بدل چکی ہے، ایسا ہے نا؟ 7 میں 8 میں تاریخ بدل چکی ہے۔ اللہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز دوستو، میں یہاں پہنچا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ مولانا شکیل صاحب نے کارگزاری سنائی، مولانا نے کارگزاری سنائی، اس مسجد کے حالات اور معاملات اور مدرسے کی بات۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کے عمر میں، ان کے علم میں، تگ و دو میں، محنت کوشش میں، لگن میں اللہ مزید دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو خزانہ غیب سے ان کی ضروریات و حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ ان کے معاونین، متوسلین، معتقدین، ان سب کے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ختم قرآن کی تقریب میں جمع ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اور قرآن ملے گا کیسے، اس عنوان پر چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور مجھے احساس ہے کہ رات کا نصف حصہ بیت چکا ہے، لیکن آپ کے چہروں پر جوانی ہونی چاہیے۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں، تو اسی لیے چہروں پر جوانی جھلک رہی ہو نا تو مجھے بات کرنے میں مزید آسانی ہوگی۔ معزز دوستو، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے تو اس نے درس انقلاب دنیا میں دیا ہے۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن آف دا ہولی قرآن۔ قرآن کریم کی تعریف کیا ہے؟ قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمہ اللہ نے اسرار التنزیل تفسیر بیضاوی میں، ملا جیون رحمہ اللہ نے نور الانوار میں اس کی تعریف ذکر کی ہے
کہ 3 چیزوں پر مشتمل چیز کا نام قرآن کریم ہے۔ وہ تعریف یہ ہے، القرآن هو المنزل علی الرسول والمکتوب فی المصاحف والمنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم وہ ہے جو اللہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن کریم وہ ہے جسے صحابہ کرام نے صفحات میں لکھا۔ قرآن کریم وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک بغیر کسی شک، بغیر کسی شبہ کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب سب سے پہلی بات اللہ نے نازل فرمایا، نمبر 2 صحابہ نے لکھا، نمبر 3 حضور پاک کے دور سے ہم تک بغیر شک و شبہ کے پہنچا ہے۔ میری عظمت قرآن پر گفتگو انہی تینوں عنوان کا محور پر ہوگی۔ توجہ رکھنا، المنزل علی الرسول، قرآن کریم حضور پاک پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کیسے نازل ہوا؟ یہ لفظ تو بہت آسان ہے کہ قرآن اترا، قرآن آیا، وحی کا نزول ہوا، لیکن اس میں کوئی دقت، کوئی تکلیف ہوئی یا نہ ہوئی، آؤ رسول اللہ کے دربار میں چلتے ہیں، صحابہ کرام سے معلوم کرتے ہیں، اہل بیت عظام سے پتہ کرتے ہیں کہ نزول وحی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں، رب العزت کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، یأتین الوحی مثل سلسلۃ الجرسی او کما قال، کہ حضور پاک علیہ السلام نے کہ اللہ کبھی میرے اوپر وحی یوں بھیجتے کہ وہ ایک گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح مسلسل آتی، احیانا یتمثل لی الملک، بعض اوقات یتمثل لی الملک، بعض اوقات فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے میرے پاس آتا، فیکلمنی، مجھ سے گفتگو کرتا، فاعی ما یقول، میں اس کی بات کو یاد کر لیتا اور آپ کو سنا دیتا۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت اماں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کبھی فرشتہ گفتگو کرتا، کبھی صرف آواز سنائی دیتی، آپ کو کس پر دقت اور راحت کا فرق سمجھ آتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب فرشتہ مجھ سے گفتگو کرتا، قرآن اتارتا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، بڑی آسان کیفیت ہوتی، بڑے آسان حالت ہوتی، میں اس وحی کو سن کے یاد کر لیتا۔ نمبر 2، جب آواز آتی فرشتہ نظر نہ آتا اور آواز ایسے آتی جیسے گھنٹی بجتی ہے، یہ تکلیف دہ لمحہ ہوتا، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْسَمُ عَنِّي، اتنی تکلیف ہوتی، اس تکلیف کی شدت و حدت کی بنیاد پر میرے جسم سے پسینے پھوٹ پڑتے۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، دقت ہوئی، اس کے بعد وحی اتری، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، مولانا گھنٹی تو شیطان کا آلہ ہے، حدیث پاک میں ہے، الجرس مزامیر الشیاطین، یہ جو گھنٹیاں ہیں یہ شیطان کا گٹار ہیں، شیطان کا باجہ ہیں، تو پھر شیطان کے باجے کے طرز پہ قرآن کریم کیوں اترتا تھا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کھولیے صحیح بخاری کی شرح، علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری، آپ کھولیے صحیح بخاری کی تفسیر، حافظ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، وہ جو لفظ لکھتے ہیں لفظ میرے ہوں گے، مطلب ان کا ہوگا، وہ بتانے کے لیے سمجھاتے ہیں، کہا گھنٹی نہیں بجتی، مثل سلسلۃ الجرس، لگتا ایسے تھا کہ جیسے گھنٹی مسلسل بجتی ہے ویسے وہی مسلسل اترتی تھی۔ اور آج کے دور میں اس گھنٹی کو سمجھانا تو بہت آسان ہے۔ موبائل دکھائیں مولانا، یہ آپ کی اور میرے جیب میں یہ موبائلز موجود ہوتے ہیں، اس موبائل پر میسج آتا ہے، کال آتی ہے، واٹس ایپ آتا ہے،
کوئی اور میسج آتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں. جب میسج دیکھتے ہیں اور میسج پڑھتے ہیں یا میسج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دو باتیں ہیں. مثلا مولانا عطاء الرحمان نے بھائی شکیل کو میسج کیا, مفتی مولانا صاحب آپ کہاں ہیں؟ لکھا تو یہی تھا کہ مولانا آپ کہاں ہیں, لیکن جب مولانا کے پاس میسج گیا آواز ٹنگ ٹنگ کی آئی, آواز ٹیں ٹیں کی آئی. جب انہوں نے آواز پر متوجہ ہو کے میسج کو کھولا, اندر لکھا ہوا تھا آپ کہاں ہیں. پتہ چلا جو آواز آ رہی وہ مقصود نہیں ہے, جو آواز سنائی دے رہی وہ اوریجنل اور اصل نہیں ہے, بلکہ اس کو متوجہ کرنے کے لیے آواز کا سہارا لیا ہے. اس کے بعد میسج کھولیں گے, اوریجنل میسج سمجھ آئے گا, اصل بات عقل میں آئے گی. یأتینی مثل سلسلۃ الجرسی, اللہ کے رسول نے فرمایا وہی یوں اترتی جیسے گھنٹی بجتی ہے. مراد یہ ہے کہ گھنٹی بجنے پر میں متوجہ ہوتا, جب توجہ کرتا تو قرآن کی آیت بن کے نازل ہو جاتی. آج کے دور میں گھنٹی کو سمجھانا بہت آسان ہے. اچھا میرے پاک پیغمبر نے اتنی تکلیف برداشت کی, اور جب یہ تکلیف برداشت ہوئی پھر آگے معاملہ کیا ہوا؟ حدیث پاک میں ہے جب قرآن کریم کی آیات نازل ہو جاتی, صورتیں نازل ہو جاتی, اس میں قیامت کا ذکر ہوتا, جہنم کا تذکرہ ہوتا, جنت کی باتیں ہوتی, آخرت کے احوال ہوتے, میدان محشر کا منظر ہوتا, قبر کا معاملہ ہوتا اور دوزخ کے عذابات کا ذکر ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ عذاب کو سن کے اپنی امت کی تکلیف کی بات کو پڑھ کے پریشانی ہو جاتی. وحی کے نزول نے, اللہ کے کلام نے اترنے میں اپنا روب ایک تو رکھا تھا, دوسرا بات جہنم کی آئے, پیغمبر علیہ السلام پہ تکلیف ہوتی, لیکن حضور اس تکلیف کو برداشت کرتے, وہی نازل ہوتی, امت تک پہنچا دیتے. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واسطہ ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خطاب کر کے میرے پاک پیغمبر نے یوں فرمایا, یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا. ابو بکر یہ سورت ہود جس میں آخرت کا ذکر, جس میں قبر کا ذکر, جس میں دوزخ کے احوال, جس میں باقی معاملات اور اس جیسی باقی صورتیں جب نازل ہوئیں, اس قرآن کے نزول نے آپ کے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. شیبتنی ہود و اخواتہا واشتعل الراس شیبہ. قرآن کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے سورت نمبر 19 سورت مریم کے پہلے رکوع میں کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی, بیوی کی عمر 90 سال تھی, اولاد کی خواہش دل میں تڑپ مار رہی تھی, تو زکریا نے اللہ کے سامنے ہاتھ دستے دراز کیے اور رب کو عرض کرنے لگے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ, چھپکے سے دعا مانگی اور عرض کرنے لگے یا رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا. میرے مولا میرے اللہ تین باتیں ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے انی وہن العظم منی, میری جوانی ڈھل چکی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. دوسری بات یہ ہے واشتعل الراس شیبا, میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, سر میں چاندی اتر آئی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے ولم اکم بدعائک رب شقیہ, جب آپ کے اس نبی زکریا کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا تو نے میرے ہاتھ خالی نہیں پہ واپس کیے. اللہ میں مانگتا ہوں مجھے اپنی جناب سے بیٹا دے دے. رب نے اس عمر میں ان کو بیٹا دیا. میری بات کا مطلب واقعہ نہیں ہے, میں ایک لفظ سے استدلال کر رہا ہوں, ایک لفظ کو اخذ کر کے نکال رہا ہوں. اللہ نے بڑھاپے کو, اللہ نے بال کی سفیدی کو شیبہ کے لفظ سے تعبیر
ताबीर किया है, वश्तअल अर्रासु शैबा, फरमाया जब सर सफेद हो जाए ये बुढ़ापा होता है। मेरे पाक पैगंबर पे यूं बुढ़ापा नहीं आया कि उनके सर और दाढ़ी अक़दस के बाल मुबारक सफेद हो जाएं, बल्कि हजरत जाबिर, हजरत बरा की रिवायात कुतुब सीरत में मिलती हैं कि जब तबूक के 1000 किलोमीटर के थका देने वाले सफर से अल्लाह के रसूल वापस हुए और ये जिंदगी का आखिरी गज़वा लड़ा, उसके बाद हज्जतुल विदा से वापस हुए, अल यौमा की आयत उतरी, 3 माह के अंदर अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए। फरमाया हमने गिना है, मुख्तलिफ मजलिसों में हमने शुमार किया है, मुख्तलिफ औकात में रसूलुल्लाह की दाढ़ी में सारे बाल काले थे, 18 बाल सफेद थे, 18 बाल सफेद। इस बुनियाद पे तो जवानियां होती है और बुढ़ापा नहीं आता, जवानियां नहीं ढलती। लेकिन रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर को फरमाया, अबू बकर ये कुरान उतरा, शय्यबतनी हुद व ख़वातिहा, तुम्हारे नबी की जवानी बुढ़ापे में बदल चुकी है। वजह क्या है? वही के नुज़ूल की तकलीफ थी, वही के उतरने की दिक्कत थी। ये दिक्कत मेरे पाक पैगंबर ने बर्दाश्त करके उम्मत को कुरान बतौर शिफा दिया है। ये तकलीफ क्यों थी, दिक्कत क्यों थी? उसकी वजह आप खुतबा से आयत का तर्जुमा तो सुनते हैं, मैं आपको उसकी वजह देने लगा हूं। अक्सर तौर पे हमारे मिंबरों पे बयान होता है कि कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबल, अलल जबल नहीं है, अला जबल, नकरा, दुनिया के किसी पहाड़ में ताकत नहीं है। अला जबल लराईतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, पहाड़ पे कुरान आता तो पहाड़ में 2 सिफतें आती, खुशू और तसद्दु। खुशू कहते हैं गर्दन का झुक जाना, नजर का झुक जाना, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, खुशू का माना झुक जाना, और तसद्दु ये डब्बा है। इस डब्बे के अंदर अगर कोई ऐसा मवाद हो जो अंदर से ब्लास्ट हो और डब्बा टुकड़े टुकड़े हो जाए, इसे कहते हैं तसद्दु। तो कुरान ने कहा अगर पहाड़ पर कुरान उतारता तो पहाड़ में 2 चीजें होती। नंबर 1, बावजूद है कि वो खुद को ताकतवर समझता है, बावजूद है कि वो खुद को इस्तिकामत वाला समझता है, लेकिन कुरान के बोझ से उसकी गर्दन भी झुक जाती, खाशिया। नंबर 2, मुतसद्दिआ, जलाले इलाही के कलाम इलाही के जलाल की वजह से, हैबत रोबो दबदबे की वजह से पहाड़ में वो हिद्दत और शिद्दत आती कि वो रेजा रेजा होकर फट जाता। तो हम कुरान करीम पढ़ते हैं हमें शिफा मिलती है, हम कुरान पढ़ते हैं हमें सेहत मिलती है। कारी साहब दम करके फूंक दें, यहां दम कर दें, सेहत मिले। बाबा ये कैसी सेहत मिलेगी? इस कलाम के नुज़ूल ने तो पहाड़ों को हवा में उड़ा देना था, अब सेहत याब कैसे हो गए? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा कैसे हो गया? भाई इस जलाल कलाम में जलाल कहां गया? कलाम में गर्मी कहां गई? कलाम में शिद्दत और हिद्दत कहां गई? वो मेरे पाक पैगंबर ने अपने सीने को आगे करके सब कुछ बर्दाश्त किया। नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मदिन, डायरेक्ट नहीं आया कुरान, डायरेक्ट नहीं आया, बरह रास्त नहीं आया, इनडायरेक्ट आया है, बिल वास्ता आया है, पहाड़ पे नहीं आया, हुजूर के सीने से हम तक गुजर के आया है। तो जब हुजूर के सीने से गुजरा तो कलाम की हिद्दत को, शिद्दत को, हरारत को बुरूदत में बदला, कलाम के रौब को मोहब्बत में बदला गया, और कलाम की सख्ती को नरमी में बदला, और कलाम के जलाल को जमाल में बदला। ये हुजूर पाक के सीने की कुर्बानी है, दिल अक़दस की कुर्बानी है। ये हुजूर ने दिक्कत और तकलीफ बर्दाश्त की है ताकि मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो, ताकि मेरी उम्मत पढ़े तो ज़बानें जल न जाएं, मेरी उम्मत पढ़े तो दिल रेजा रेजा ना हो, मेरी उम्मत पढ़े तो जिंदगी से हाथ न धो बैठे। नाना, ये जब कुरान करीम उतरेगा मेरा दिल अकेला इसकी तकलीफ के नुज़ूल को बर्दाश्त करेगा, उम्मत पढ़ेगी तो शिफायाब हो जाएगी। यह है हुजूर की कुर्बानी, यह है शय्यबतनी हुद व ख़वातिहा।
یہ ہے تمہارے نبی کی جوانی کو نزول قرآن نے بڑھاپے میں بدل دیا. یہ قربانی ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے. کیوں؟ کلام خدا ڈائریکٹ مخلوق پہ آئے, نبی کے واسطے کو کراس کر کے تو مخلوق جل جائے. آپ کہیں گے ثبوت, میں اس کا ایویڈنس پیش کر رہا ہوں. قوم موسیٰ نے کہا تھا ارین اللہ جہرا, ہمیں اپنی آنکھوں سے اللہ دکھاؤ. حضرت موسیٰ نے فرمایا نبی کے واسطے کو کراس نہیں کرو, نبی کو اللہ کا کلام آتا ہے اور نبی تمہیں سناتا ہے. کہا جی نہیں ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. کہا چلو پھر 70,000 نے 70 بندے نمائندہ بنائے, کوہ طور پہ لے کر گئے. اللہ ہی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا لن ترانی, یہ خواہشات کو ذبح کر دو, تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, انہیں کہہ دو. کہا یا اللہ ان کی خواہش ہے. کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو, انہیں استقر مکانا, میں پہاڑ پہ تجلی نازل کر رہا ہوں, کلام کی تجلی. یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو ان نے مجھے دیکھ لیا. کہا جی بہت اچھا. قوم موسیٰ نے یوں پہاڑ کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا شروع کر دیا. جب یوں دیکھا تجلی اتری, قوم جل گئی. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور بے ہوش جب ہوش میں آئے, میرے مولا موسیٰ کیا مانگتے ہو؟ اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے. اے موسیٰ آپ ان کی زندگی کیوں مانگتے ہیں؟ میرے مولا تو میرے دل کی تڑپ جانتا ہے, میں ایک ہی وجہ سے مانگتا ہوں, یہ پچھلوں کو جا کر بتائیں گے نا کہ اللہ کو اس دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا. کہا جی ٹھیک ہے. 70 بندوں کو دوبارہ زندگی ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم کے پاس گئے اور انہیں بتایا. توجہ رکھنا مری کے مسلمانوں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. قوم موسیٰ نے نبی کا واسطہ کراس کیا تو جل گئی, اور ادھر جب اللہ کا کلام آیا تو میرے پاک پیغمبر نے اپنا سینہ قربانی کے لیے پیش کر دیا. وہ تمام تکلیف اکیلا سینہ محمدی نے برداشت کر لی. اب ہم جلتے نہیں ہیں, اب زبانیں سڑتی نہیں ہیں, اب آگ نہیں لگتی, اب جل کے راکھ اور بھسم نہیں ہوتے, اب ہمیں شفا ملتی ہے. وجہ ہمارے پیغمبر کے سینہ اقدس کی قربانی ہے. اور میرے دوستو, اگر میں یوں کہوں کہ دنیا کے پہاڑوں میں وہ قوت و طاقت و ہمت و سکت نہیں ہے جو اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے سینے میں رکھی ہے, تو یہ بے جان نہیں ہے. اس سینے میں جتنی پاور رکھی ہے, اس سینے میں جتنی قوت اللہ نے رکھی ہے, دنیا کے پہاڑ اس قوت کے حامل ہونے سے عاجز ہیں, اس قوت کو اٹھانے سے عاجز ہیں جو اکیلا سینہ نبوی میں رب نے قوت عطا فرمائی ہے. تو ہمارے پاک پیغمبر پر یوں قرآن نازل ہوا. القرآن هو المنزل علی الرسول, رسول اللہ پر یوں آیا, قربانی دی ہمارے پاک پیغمبر نے. والمکتوب فی المصاحف, صحابہ کرام نے اس کو لکھا. یاد رکھیے قرآن کریم کی پہلی نازل ہونے والی سورت کی 5 آیات سورت اقرا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 5 آیت اتری. آج ہم قرآن کریم کھولتے ہیں, پہلے سورت فاتحہ نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اتری تو وہ تھی, نظر یہ آتی ہیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نمبر 2, اس کے بعد کلا ان الانسان لیطغی نہیں اترا, اس کے بعد تو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے کمبل لپیٹنے والے اٹھ کھڑیے, قم فانذر, کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرائیے, اپنی ڈیوٹی کو پورا فرمائیے. قم فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر اور اس کے نام کو بلند کیجئے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. کیا معنی؟ شرک کی پلیتی کو قریب نہ آنے دیجئے. والرجز فاہجر, اس پلیتی کو ٹھڈا ماریے, دور پھینکیے. یعنی کفر کی پلیتی کو قریب نہ آنے دیجئے, ورنہ تو رسول اللہ کے کپڑے پاک کپڑوں کے امام کپڑے ہیں. تو یہ دوسری صورت تھی, تو یہ بھی قرآن نے الحمدللہ کی جگہ نہیں لکھی گئی. تیسری یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یہ بھی نہیں یہ اتری تیسرے نمبر پہ. یہ بھی قرآن کریم میں ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں نظر آ رہی ہے سورت
फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरत आल इमरान। ये तरतीब क्या मतलब? याद रखें, अल मकतूब फिल मसाहिफ, जो सहाबा ने कुरान करीम को लिखा ना, इसमें अपनी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। इसे पहले लिख दो, इसे बाद में लिख दो, इसे अव्वल लो, इसे आखिर लो, यूं नहीं है। ये तरतीब तौकीफी है। रसूल अक़दस खुद फरमाते, इस आयत को इधर, इस रकू को इधर, इस सूरत को इधर, इसको इधर लिखो। उतरी पहले इकरा, लिखी पहले फातिहा, उतरी पहले इकरा, लिखी पहले फातिहा। ये तरतीब मेरे पाक पैगंबर की अपनी है, ये रसूलुल्लाह ने खुद लिखवाई। एक एक आयत को एक एक जगह जोड़ने का हुक्म दिया, एक एक सूरत को एक एक मकामात पर देने का हुक्म। इसमें किसी सहाबी का कोई अमल दखल नहीं है। मैं इस पर एक दलील दे रहा हूं, तवज्जो रखना। कुरान करीम के 3 नाम कुरान करीम में मौजूद है, कलाम, किताब, कुरान। यस्माऊन कलाम अल्लाह, अल्लाह की बात। बल हुवा कुरान मजीद, कुरान पाक। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह की किताब जिसमें शक कोई नहीं। मैं सवाल कर रहा हूं, अल्लाह पाक ने ज़ालिकल कुरान ला रैब फीह क्यों नहीं कहा? ज़ालिकल कलाम ला रैब फीह क्यों नहीं जिक्र किया? ज़ालिकल किताब क्यों जिक्र किया? उसकी बुनियादी वजह यह है, उतरा हुजूर पे है कुरान, लेकिन हुजूर पाक खुद लिखने वाले नहीं है। वला तखुत्तहु बियमीनिका इज़ल लरताबल मुब्तिलून, 21वें पारे का पहला सफर आपने ऐलान कर दिया। रसूलुल्लाह ने नहीं लिखना, लिखना किसने? सहाबा ने। अब कोई कह सकता था ये आयत उतरी यहां थी, सहाबा ने लिखा वहां है, उतरी यहां थी, लिखा वहां है, गडमड कर दिया, आगे पीछे कर दिया, अपनी मर्जी चला ली। तो अल्लाह पाक ने इसीलिए फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ओए इनके लिखने में शक कोई नहीं। सुभान अल्लाह। कलाम की बात नहीं की, वो तो अल्लाह ने बोला है, उसमें शक कोई नहीं। कुरान की बात नहीं की, पढ़ी हुई किताब, वो तो हुजूर ने पढ़ी है, शक कोई नहीं। लिखने में शक आ सकता था तो उस शक की जड़ काट के रख दी। फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जैसे मेरे कलाम में शक नहीं, वैसे हुजूर के पढ़ने में शक नहीं, वैसे इन सहाबा के लिखने में शक नहीं। तो इस बुनियाद पर अल मकतूब फिल मसाहिफ, दूसरा लफ्ज़ कि सहाबा किराम ने इसको सहीफों में लिखा। नंबर 3, वल मनकूल अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबहा, हुज़ूर पाक के दौर से लेकर हम तक बगैर किसी शक व शुबह के कुरान करीम आया है। वजह ये ज़ब्त बिल किताबा भी है, ज़ब्त बिल सदर भी है, लिखा भी गया है, याद भी किया गया है। और ये एजाज सिर्फ इस उम्मत मोहम्मदिया का है जिसने अपने खुदा के कलाम को सीने में महफूज किया है। पिछली उम्मतें तौरात का 2 सफ़ा भी हिफ्ज़ न कर सकी, इंजील के हाफिज न बना सके। पिछली उम्मतों की अवाम की बात कर रहा हूं, वरना वक़्त का नबी अपनी किताब का हाफिज होता है। हजरत, आपकी तवज्जो है तो मैं एक जुमला कहता हूं, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को तौरात हिफ्ज़ थे। ये न कहना कि वक़्त का नबी न पढ़ सका, मैं उम्मत की बात कर रहा हूं। तौरात आई तो उम्मत याद न कर पाई, इंजील आई तो उम्मत ईसा याद न कर पाई, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को ज़बूर मिली तो वह हिफ्ज़ न कर पाए, सुहफ मिले तो साबी पढ़ न सके, याद न कर सके। ये उम्मत मुहम्मदिया है जिसको अल्लाह ने कुरान दिया है, सीने अक़दस से गुजार के दिया है, उम्मत हाफिज पर हाफिज बनाई जा रही है। यार एक जुमला कहता हूं, सुनिए, मुझे जवाब दीजिए। उर्दू की किताब हो, जो ज़बान हम पढ़ते बोलते सुनते सुनाते आए हैं, और मैं उठा के एक बंदे को दूं, ये पढ़ो 2 सफ़े, और उर्दू की इबारत मुग़लक हो, पेचीदा हो, थोड़ी मुश्किल हो, 2 मिनट पढ़ने के बाद बंदा कहेगा जी छोड़ दो, मेरी तबीयत खराब हो गई, समझ नहीं आती, रख दो। अपनी मादरी बोली, मां बोली हम नहीं पढ़ते, क्यों? समझ नहीं आ रही, उकताना शुरू हो जाते हैं। और कुरान करीम उर्दू में किसको समझ आ रहा है? 99.9% तो आलिम नहीं है जो समझे। अवाम भी पढ़ती है तो कोई नहीं उकताता, हर दफा पढ़ने का मजा अपना है, हर दफा तिलावत का मजा अपना। आपने कुरान करीम सुना है,
ये वही किताब पढ़ी जा रही है हुजूर पाक के दौर से, कोई नई किताब आज तक हाफिज नहीं पढ़ रहा। वरना कोई तो कहता मौलवी साहब है तो पिछले साल पढ़ी सी, हुण कोई और पढ़, अब कोई और कुरान सुना, कोई और सुनाने के लिए यहीं ठहर। देखो बुखारी का पहला सफा सूरत फातिहा के बाद पढ़ ले तो अगले छोड़ दे पीछे, उसके पीछे नमाज पढ़ना। तो हम कुरान करीम हर बार सुन रहे, हर बार 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 सुन रहे, हम उकताते नहीं हैं, हमें तकलीफ नहीं है। क्यों? इस उम्मत ने खुदा के फरीजे को यूं पूरा किया है कि उन पे हिफाजत अल्लाह ने डाली, वो हिफाजत न कर सके, इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। उम्मत हिफ्ज करके जिम्मेदारी खुदा को पूरा कर रही है। तो फल मकतूब फिल मसाहिफ वल मनकूल अनहु नक़लन मुतवातिरन बिला शुबा, सहाबा ने लिख के दिया और उम्मत तक बगैर किसी शक व शुबे के पहुंचाए। अंग्रेज ने हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब जजीरा इंडमैन में कैद के लिए ले गए तो दारुल उलूम देवबंद में अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा आता है और आकर कहता है ये सारे कुरान करीम उठा लिए जाएं, हम इस नुस्खों को जब्त करेंगे। ये किताब है जो मुसलमान को जिहाद फी सबीलिल्लाह का सबक देती है, और वो अपनी जान और अपनी जिंदगी और अपनी माल और दौलत, अपनी आल औलाद की परवाह किए बगैर हमसे नबुर्द आज़मा होता है। हमारी आंख में आंख डाल के वो हमसे नहीं डरता, क्योंकि हम मौत से डरते हैं। मुसलमान मौत से नहीं डरता, और ये किताब इसे बताती है शहादत के बाद रब हयात जावेदा देगा। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है का ये मुजदा लेकर हमारे मुकाबले में आने वाले हो। हम इस कुरान को उठाएंगे, जब्त कर देंगे, दरिया बुर्द कर देंगे, समंदर में फेंक देंगे। जब वो उठाकर जमा कर चुका तो वहां बैठे हुए कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद ने एक बच्चे को खड़ा किया, कहा अंग्रेज जरा बैठ जा, इससे कुरान सुन। ये बंदा हिंदी है, बोलता उर्दू है, जबान इसकी अरबी नहीं है, जरा पूछ कुरान करीम का सफा, जो मस्ती आए सफा तू खोलेगा, जबानी ये सुनाएगा, सूरत तू रिकमेंड करेगा, पढ़ना यह शुरू करेगा, रकू तू रिकमेंड करेगा, तिलावत यह करेगा। कुरान करीम वो खोलते गए, हाफिज पढ़ता गया, वो पूछते गए, ये पढ़ता गया। जो बोरे कुरान करीम के भरे हुए थे वो यहां रख के चला गया कि मैं इस किताब को तो इस दुनिया से नुस्खे खत्म कर सकता हूं, लेकिन इन सीनों का क्या करूंगा जिसमें कुरान आज तक महफूज है। मेरे दोस्तों, ये उम्मत मुहम्मदिया का एजाज है कि इनने कुरान करीम अपने सीने में सजा लिया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो सीने के उठाने वाले जिनके सीनों में अल्लाह की किताब है। बड़ी बात, बड़ी बात। जन्नत का पैकेज। हजरत अली फरमाते हैं, मन करा अल कुरान व अमिल बिमा फी, जिसने कुरान करीम पढ़ा, अपनी जिंदगी में सजाया और हाफिज बन गया, अशरतुब मिन अहली बैतिही कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। 10 जहन्नमी जिनको कन्फर्म कर दिया जाएगा जहन्नम के रजिस्टर में डाल के, और इसके खानदान के होंगे। हाफिज कुरान को बुलाकर कहा जाएगा, आओ इनमें से किसी की सिफारिश, वो इन 10 पे हाथ रखेगा, रब इन्हें जन्नत का मुस्तहिक बना। कम एजाज है इस कुरान करीम पढ़ने का, कम मकाम है इस कुरान करीम को सीने में रखने का। और फिर हजरत मुआज जोहनी की रिवायत है रजी अल्लाह अन्हु। खुशखबरी है पाकिस्तान वालों, इस मुआज जोहनी की कब्र मिल्लत इस्लामिया के इस पाकिस्तान में है। खैरपुर जाइए, उससे पहले सक्खर जाइए, सक्खर से कोयटा रोड शिकारपुर रोड पर जाइए, महबूब गोठ पर जाइए, जामिया दारुल हुदा पे जाइए, मुफ्ती अब्दुल हादी के मदरसे में जाइए, उसके अकब में 3 साहबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं जहां हजरत मुआज जोहनी रजी अल्लाह अन्हु भी है। हजरत मुआज फरमाते हैं रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उल बिसवालिदा ताजा यौमल क़यामत ज़ौउ अहसन मिन ज़ौइ शम्स। फरमाया, दुनिया के सूरज पर नखरे करने वालों, दुनिया की सूरज की रोशनी पर खुशियां मनाने वालों, हाफिज कुरान के माँ बाप पे वो सर पे वो ताज सजेगा जिसके सामने सूरज की गर्दन झुक जाएगी कि ये तो मुझसे ज्यादा रोशन है।
ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। अहसन इसमें तफजील है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ल्ड। इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। इतनी रोशनी होगी जो सूरज से भी बढ़ के होगी, ये कम मकाम है। तो हुजूर पाक के दौर से लेकर आज तक हमारे पास बगैर किसी शक व शुबे के आया है। ये तवातुर है, ये इजमा है, ये इत्तेफाक है, ये हम तक पहुंचा है कुरान। तो ये तीन चीजें मिलाएं तो अल्लाह की किताब बनती है। और मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में कहा था कि ये कुरान हमें मिलेगा कहाँ से। दूध तो दूध वाले से मिलता है, हमें दूध और दही गवाला देकर जाता है। हमें डॉक्टर की दुकान से दवाई मिलती है, स्वीट हाउस से हमें मिठाई मिलती है, हमें गोश्त कसाई की दुकान से मिलता है। कुरान करीम हमें कहाँ से मिलेगा? कुरान करीम हमें मदारिस और मसाजिद से मिलेगा, याद रखें। और मैं अल्लाह की ताकत पर भरोसा करके कहता हूँ, क़यामत तक मदारिस भी रहेंगे, मसाजिद भी रहेंगे, और ये कुरान और कुरान वाले भी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत इन्हें खत्म नहीं कर सकती। आज लोग मदारिस के खिलाफ साजिश पता है क्यों करते हैं? मदरसे की चार दीवारी से उन्हें कोई लड़ाई नहीं है, मदरसे की छत में लगे हुए मटीरियल से उन्हें कोई गर्ज नहीं है, वहां पे लगे हुए गार्डर और टीआर के वो दुश्मन नहीं है, आरसीसी की छतों के वो मुखालिफ नहीं है। उन छतों के नीचे बैठने वाला जो काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, उन्हें इस बात से गर्ज है कि ये बंद कब होगा। याद रखना, नस्लें दर नस्लें उजड़ जाएं, कभी भी दीन की मेहनत बंद नहीं होगी। याद रखें, यूं नहीं है, यूं नहीं है, यूं न समझे कि एक तरने वाला होगा और मदारिस को यूं खत्म कर दिया जाएगा। जी नहीं, एक आलिम दीन से मदरसे की इमारत खींच सकते हो, लेकिन ये आलिम अगर एक दरख्त के नीचे जंगल में बैठ जाए, ये हाफिज अगर एक दरख्त के नीचे जंगल में बैठ जाए, तो उस दरख्त की जगह को दारुल उलूम में बदल सकता है, मदरसा तहफीजुल कुरान में बदल सकता है। बाबा यूं नहीं है, ये न समझे तिपाही का नाम मदरसा है, पढ़ाने वाले के सामने बैठे हुए बच्चे जिस चटाई पे बैठे हैं उसका नाम मदरसा है। जी नहीं, मदरसा उस्ताद और शागिर्द के रिलेशन का नाम है। एक शख्सियत है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फिका के शारे हजरत इमाम अबू बकर सरख्सी रहमहुल्लाह। औस जंद के कुएं में वहां के बादशाह ने कैद कर दिया। बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डाल के फतवा दिया, कासालेस नहीं बने उसके दर पे हाजिरी देकर। बादशाह ने औस जंद के कुएं में कैद कर दिया। 2.5 साल तक यहां कैद रहो, कैद तन्हाई है, ऊपर से आके फौजी किसी टाइम रोटी और पानी डाल जाते हैं, उससे किसी की मुलाकात की इजाजत नहीं है। वक्त का मुहद्दिस और मुफस्सिर और फकीह है, इमाम अबू हनीफा के उलूम और फिका का शारे है। शागिर्द भिखारियों की शक्ल में, हाथ में लोटे और डंडे पकड़े हुए, भिखारीपन बज़ाहिर इख्तियार करते हुए, सदाएं लगाते हुए आते और थक हार वाले अंदाज में यूं उस कुएं की मुंडेर के साथ टेक लगाते, ताकि वहां की पुलिस ये समझे, वहां के इदारे ये समझें, वहां के लोग ये समझें, वहां के बासी ये समझें कि फकीर बैठा है, यतीम बैठा है, मंगता बैठा है, कोई साहिबे जरूरत बैठा है। ये अपने उस्ताद से मुखातिब होते, वो आवाज जो इनके कोड वर्ड में थी, वो नीचे से कुरान और हदीस की तफसीर बयान करता, ये अपने जहन में रखते, ये अपने अंदाज में लिखना शुरू करते। लोग समझते भिखारी अपनी भीख को जमा कर रहा, भिखारी अपने पैसों को जमा कर रहा। शागिर्द उन मसाइल को मुरत्तब करते जो उस्ताद के दिमाग में महव थे। वो किसी किताब से स्टडी नहीं करता था, वो किसी किताब के लिखे हुए से नहीं पढ़ता था, वो अपने हाफिजे से इनको इमला कराता। ये शरीयत के उलूम को लिखते, मसाइल और फजाइल और दलाइल लिखते। आज जब वो शख्स इस जगह से रिहाई पाकर निकला, इन शागिर्दों ने इतने उलूम जमा किए थे जैसे शरीयत का ला कहते हैं, शरीयत का कानून कहते हैं। 30 जिल्दों में अल मबसूत लिस्सरख्सी जमा हो चुकी है।
30 जिल्दों में। अल-मबसूत उठाइए, मैंने अल-मबसूत पर एक मकाला लिखा है, हर जल्द का एक खुलासा लिखा है। अल्लाह की कसम मैं हैरान हो गया। मेरे जिम्मे मेरे उस्ताद मोहतरम ने लगाया, आप इसका खुलासा लिखिए। मैंने 8 साल आलिम कोर्स में अल-मबसूत नहीं पढ़ी थी। मैंने अपने 3 साल तखस्सुसात की जिंदगी में मबसूत को फुली स्टडी नहीं किया था। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने उलमा इज्तिमा में इसकी समरी सुनानी है, कैसे सुनाऊं? मैंने 2 दिन इस पे लगाए कि जो भी दिन के नवाफिल हैं, वो इशराक हो, वो चाश्त हो, वो अव्वाबीन हो या सलातुल हाजत हो, वो पढ़ के इमाम अबू बकर सरख्सी की रूह को हदिया करता, पढ़ के दुआ करता और रब्बुल इज्जत से मांगता, मेरे मौला इस शख्स के दिमाग को आपने खोला था, इसने कुएं में बैठ के एक उलूम की दस्तावेज लिखवा दी। अल्लाह आप मुझे भी इसका फैज अता करें ताकि मैं इसकी किताब को पढ़ूं तो मसला हल होते नजर आए। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, मैं झूठ बोलूं अल्लाह मदद खींच लेंगे। 30 जिल्दों के सरख्सी मेरी लाइब्रेरी में थी, मबसूत सरख्सी। यकीन माने में एक जिल्द उठाता उसका खुलासा लिखने के लिए, ऐसे जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलवा बना दिया। मैं उस जिल्द का खुलासा लिखता, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का। 30 जिल्दों पे उस जिल्दों का खुलासा अब यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है, आप वहां से देख लीजिए। खुदा की कसम रब ने वो मदद की है कि आज इतने साल बाद भी उसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी जो है ना अहमियत रखी है कि बंदा दंग रह जाता है। उसके मसाइल देखें, उन्वानात देखें, उसके ज़ैल में मसाइल की फुरुआत देखें, हैरान हो जाता है इंसान कि इस बंदे ने दीन पे मेहनत कैसे की है। मैं बता रहा हूं उन लोगों को, बावर करा रहा हूं उस तबके को जो मदारिस को, मसाजिद को, उलमा को, कुर्रा को, हुफ्फाज को, दीन वालों को, दाढ़ी टोपी पगड़ी वालों को खत्म करना चाहते हैं। मदारिस और मसाजिद के मिस्मार करने की नापाक नीयत रखते हैं, नापाक जिसारत और इरादा रखते हैं। और भूल जाओ हम वारिस उन लोगों के हैं जिन्होंने कुएं की कैद में बैठ के इस्लाम लिखवाया था। ये भूल है तुम्हारी कि मदरसा खत्म हो जाएगा, ये भूल है यहां के मामलात खत्म होंगे। जी नहीं, जी नहीं। हाँ हाँ, मैं देखता हूं शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमहुल्लाह ये पहुंचे हैं काला पानी में, जहां कैद कर दिया गया अपने 5 साथियों के साथ, जिनमें एक हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी है, एक शख्स का नाम हकीम नुसरत जावेद है, एक शख्स का नाम हजरत मौलाना उजैर गुल हजारवी है, और एक शख्सियत इनकी खादिम बन के साथ है। 4 ये है और 5वें हजरत शेखुल हिंद है, वहां कैद किया गया। हजरत मदनी लिखते हैं इतनी सख्त हवाएं होती, हमारे हाथ फट जाते, हमारे हाथ फट जाते, हमारे चेहरे फट जाते, लेकिन उस्ताद मोहतरम ने कहा हमें इस कैद की वक्त को कीमती बनाना चाहिए। जो वहां कलम मुयस्सर था, जहां औराक मुयस्सर थे, उन्हीं कलम और औराक पे लिखना। इसने कुरान करीम का तर्जुमा शुरू किया कि आज तक हिंदुस्तान में शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह के फर्जंद शाह अब्दुल कादिर दहलवी के तर्जुमे से उम्मत फायदा ले रही, लेकिन पुराने जमाने की उर्दू है, पुराने जमाने के अल्फाज है, हिंदी के पेचीदा लफ्ज है, लोग कमा हक को नहीं समझ सकते। सलीस उर्दू, आसान उर्दू, आम फहम उर्दू में उम्मत की क़यादत के लिए मुझे कुरान करीम का ट्रांसलेशन करनी चाहिए, तर्जुमा करना चाहिए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने कलम उठाया है, अल्लाह की कसम अल-हम्द का तर्जुमा शुरू किया, वह नास की सीन तक कुरान का तर्जुमा पूरा करके जेल से निकला है। ये तो इन लोगों ने यूं खिदमत करके दिखाई है। और फिर सिर्फ यही नहीं, कम अज कम 10 पारों की तफसीर भी लिख दी। फिर जिंदगी ने वफा न की ना तो उनके मायानाज लायक फायक शागिर्द बानिए पाकिस्तान के रफीक खास हजरत अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह ने उसको मुकम्मल किया। दुनिया से तफसीर उस्मानी के नाम से जानती। ये फवायद उस्मानी है जिसे तफसीर उस्मानी का नाम दिया जाता है। इन्होंने तो बैठ के यूं खिदमत की है। जजीरा इंडोमेन की कैद में यूं पांव से बेड़ी बांध के हुसैन अहमद मदनी को डुबोया जाता, पानी में डुबकियां दी जाती, और जब निकाला जाता
पूछा जाता अंग्रेज के खिलाफ फतवा दोगे? अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया था? वो कहते दिया था क्या होता है, मैं आज भी कहता हूं ये हुजूर पाक के दुश्मन हमारे दुश्मन है। जब इन्हें खालिक दीना हाल कराची में 21 तोपों के अंदर लाया गया और जज बैठा है कलम उठाकर, वो कहते हैं मेरे कलम में एक ही लफ्ज लिखूंगा, तेरी मौत बन जाएगी। हुसैन अहमद मदनी आते हैं और वो कहते हैं तेरा फतवा है अंग्रेज की फौज में दाखिला हराम है, अपने फतवे को छोड़ते हो? नहीं तो तेरी मौत मेरे इस कलम के नीचे है, हैंगिंग टू द टिल डेथ लिखूंगा, फांसी के फंदे पे लटका दिए जाओगे। हुसैन अहमद मदनी ने अपने कमर से एक चादर को निकाला और कपड़े को यूं अदालत में लहरा के कहा, ओए फतवा दिया होता क्या है, मैं अब भी फतवा देता हूं। ओए मौत से डराने वाले जज, हुसैन अहमद देवबंद से कफन साथ लाया। याद रखे, मदारस खत्म नहीं होंगे, मसाजिद खत्म नहीं होगी, दीन खत्म नहीं होगा। अल हक यालू वला युला, ये दीन बुलंद होने के लिए आया है, पस्त होने के लिए नहीं आया। ये दीन दुनिया में नशर होने के लिए आया है, बंद होने के लिए नहीं आया। इसके लिए सिर्फ जज्बे की जरूरत है। हम कोई आपसे चंदे नहीं मांगने बैठे, मैं कोई डोनेशन की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको एक जज्बे की दावत दे रहा हूं कि इनके बाजू बनिए, इनके मुआविन बनिए, अपनी औलादों को भेजिए, बच्चियों को बच्चियों के मदरसे में, बच्चों को बच्चों के मदरसे में भेजिए, ताकि जो अल्लाह ने तुम्हें मैसेज लिखकर सहाबा और नबी के हाथों भिजवाया है कुरान, वो क्या कहता है, तुम्हारी औलादें तुम्हें घर बता सके, तुम्हारी औलादें तुम्हें बिस्तर पे सुना सके, तुम्हारी औलादें तुम्हारे कब्रों में सुना सके हमें हमारे अल्लाह क्या कहते हैं। वरना याद रखना फिर पूछोगी, अल्लाह के दरबार में पूछोगी, अल्लाह पूछेंगे मेरे नबी ने इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके तुम्हारे लिए कुरान पाक को शिफा बना के दिया था, इतनी हैबत और जलाल और रोब और दबदबे वाले कलाम की तजल्ली को अपने सीने में बर्दाश्त किया कि वो फरमाते हैं मेरी जवानी बुढ़ापे में बदल गई। तुमने इस पर क्या मेहनत की, तुमने क्या किया? खुद न पढ़ सके तो औलादों को पढ़ा दे। एक बच्ची का पढ़ जाना है, खानदान का पढ़ जाना है। याद रखें, जो मां की गोद में तरबियत मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। मैंने भी अपनी वालदा मुकर्रमा रहमतुल्लाह अलैहा से जो पढ़ा है ना, और जो बचपन में सुने हैं ना, मैंने कोई कोरू पांडू के किस्से नहीं सुने, मैंने बचपन में अपनी वालदा से अंबिया के किस्से सुने हैं ना, आज भी इस दिमाग में अन-नक्श कल हजर, खुदा की कसम जैसे पत्थर में लिख लिया जाए यूं महफूज है। एक बच्ची, एक औरत, एक खातून का पढ़ जाना, एक मुआशरे को पढ़ जाना है। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए अपनी औलादों को भी पढ़ाओ, चाहे बच्चियां हों और चाहे बच्चे हों, दीन के लिए चलाएं। आज उन्होंने बच्चों को मदरसा कायम किया है, आप इनके बाजू बनिए, कल ये बच्चियों को मदरसा कायम करें। याद रखें, इन मदारस से पीछे न जाइए, अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए। और जब हम ये जुमला कहते हैं तो शैतान एक और पट्टी पढ़ाता है। फौरन लोग हमसे सवाल करते हैं, मौलाना बच्चा आलिम हाफिज मौली बन गया, खाएगा कहां से? कहते हैं, अब आप सर लीजिए न झुकाएं, कहते हैं लोग खाएगा कहां से? मैं कहता हूं एक मिनट इस सवाल को इधर रख दो कि मौलवी बन गया खाएगा कहां से। एक सवाल मैं करता हूं, उसका जवाब आप दे दो, इसका जवाब मैं दूंगा। मेरा सवाल यह है कि जब खाने की बारी आती है, कौन ज्यादा खाता है कौन कम, तो लोग क्या कहते हैं, कौन ज्यादा खाता है? मौलवी। सब ने कह दिया, देखा, आमदम बरसर मतलब सब ने कह दिया। और बाबा मौलवी अगर ज्यादा खाता है तो फिर बच्चे को मौलवी बनाना। इधर हमें कहता है मौलवी बन गया, खाएगा कहां से, और उधर खाने की बारी आई तो कहते हैं मौलवी सबसे ज्यादा खाता है। ये दो बातें मेरी अकल में समझ नहीं आती कि मौलवी सबसे ज्यादा भी खाता है और मौलवी बनेगा तो खाएगा कहां से। ये ऐसे है जैसे कोई कहे उस बंदे को देखे जो बड़े बड़े बालों वाला गंजा है, हो सकते है बड़े बालों वाला गंजा, कोई कहे वो उस दर्जी को जानते हो जो अंधा है, तो दर्जी कैसे अंधा होगा? उस लंगड़े को जानते हो जो लंगड़ा भागने में पहली पोजीशन ले जाता है, तो लंगड़ा कैसे भागेगा बाबा? उस टुंडे को जानते हो जो तलवार और क्लाशन चला सकता है, बाबा हाथ कटा कैसे चलाएगा? जैसे ये बातें मानियतुल जमा है,
इम्पॉसिबल सेंटेंस है, नामुमकिनात में है। वैसे ये बात भी नामुमकिन है कि मौलवी खाता ज्यादा है, मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से। ये भी ऐसे, ये झूठ हमारे सामने न बोला करें, लूला लंगड़ा अंधा बहरा झूठ जो फौरन पकड़ा जाए, ये झूठ न बोला करें। झूठ हमारी सराइकी जबान में कहते हैं झूठ कूड़ ओ मारो जरा कुछ सज्जे थे कुछ फब्बे, कोई फवा के कूड़ मारना सीखो। यानी 2 नंबरी भी 1 नंबर तरीके से करना सीखे आजकल लोग कहते हैं। तो कोई झूठ बोल रहे तो वो करे, कोई लॉजिकल तो हो, कोई बंदा कोई सबूत तो दरमियान में आए। तो ऐसे आवाम झूठ बोलती है। तो इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाइए, ये याद रखिए। मैं स्कूल कॉलेजेस की तालीम से मना नहीं करता, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, एजुकेशन में पीएचडी लेवल तक जाना चाहिए, मना नहीं करता। पीएचडी लेवल, फिलॉसफी ऑफ द डॉक्टरेट हमने भी पढ़ा है, पढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए दीन के लिए, कोई मना नहीं है। हम मना एक चीज से करते हैं कि कुफ्र की तहजीब ना अपनाइए, ईसाइयत का तर्ज ना अपनाइए, यहूदियत का तमद्दुन ना अपनाइए, दुश्मन खुदा की सकाफत ना अपनाइए। सर पे पगड़ी रख के भी इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, मैथ, डबल मैथ, स्टैट, फिजिक्स और इसी तरह केमिस्ट्री और बायोलॉजी, हाथ में इस्लामी लिबास पहन के और टखने से ऊपर शलवार रख के भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए टाई लगाना जरूरी नहीं है, इसके लिए कोट पैंट जरूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं। जबान ही सीखनी है ना, आज सीख लेते हैं, इसमें कौन सा मसला है। मौलवी आदमी अगर मदारस में पढ़ने वाला कॉलेज बैठ गया ना, दिन रात का फर्क होगा, इसका दिमाग उनसे बहुत ज्यादा है। एक बंदा मुझे कहने लगा सीएसएस बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जाओ सीएसएस की कुतुब, दौरा हदीस की कुतुब के सामने रख के देख तो उठा नहीं सकेगा। सीएसएस क्या है? आप दौरा हदीस की कुतुब देखें, एक दौरे हदीस पढ़ने वाला अपनी पूरी कुतुब अकेला उठा नहीं सकता। ऐसे दीन इस्लाम के लिए कुछ नहीं है। खामखा से लोग मौलवियों के लिए कह देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, ये वो उलूम है जिन उलूम से आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। मैं इंग्लिश पढ़ने से मना नहीं करता, आप पढ़िए, पढ़ाइए अपनी औलाद को। मैंने कॉलेज पढ़ा है, मैं एक दिन अपने ग्रेजुएशन तक एक दिन स्टेक ऑफ नहीं हुआ या मैं फाइनेबल हुआ, मुझे जुर्माना हुआ, जी नहीं, एक दिन में स्टेक ऑफ नहीं हुआ। डिग्री कॉलेज डीए खान नंबर 2, आप जाकर पूछ लीजिए। डिग्री कॉलेज नंबर 2 मेरा कॉलेज है जहां से मैं पढ़ा हूं, आप पूछ लीजिए मैं एक दिन स्टेक ऑफ हुआ हूं, ये एक पीरियड मिस किया है। पढ़ा है जैसे पढ़ने का हक हो। न मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सियासत्ता में कोई छुट्टी है, न किसी एक सबक की छुट्टी है, न किसी एक हदीस की गैर सनद मुत्तसिल हो, जुमली सनद मुत्तसिल हो, और न वहां है। हमने दोनों तालीमें पढ़ी है, ये बात समझाने के लिए कि मौलवी किसी मैदान में पीछे नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म इंग्लिश में है, यहां तो 14 और 56 सीखे होते। ज़रब ज़रबा ज़रबू ज़रबत ज़रबता ज़रबना ज़रबत ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना ज़रबतु ज़रबना। ये एक्टिव वाइज है। पैसे वाइज अगर मजहूल पे हूं तो ज़ुरिबा ज़ुरिबा ज़ुरिबू ज़ुरिबत ज़ुरिबता ज़ुरिबना ज़ुरिबतु ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुम ज़ुरिबती ज़ुरिबतुमा ज़ुरिबतुन्ना ज़ुरिबतु ज़ुरिबना। ये इसकी पास्ट की मैं पैसे वाइज पढ़ रहा हूं, और अगर मैं फ्यूचर पे आऊं जिसे मुजारे कहते हैं तो यज़रिबु यज़रिबानी यज़रिबूना तज़रिबु तज़रिबानी यज़रिबना तज़रिबु तज़रिबानी तज़रिबूना तज़रिबीना तज़रिबानी तज़रिबना अज़रिबु नज़रिबु। अगर इसकी भी मैं पैसे वाइज मजहूल पढ़ूं तो युज़रबु युज़रबानी युज़रबूना तुज़रबु तुज़रबानी यज़ुज़रबना तुज़रबु तुज़रबानी तुज़रबूना तुज़रबीना तुज़रबानी तुज़रबना उज़रबु नुज़रबु। और अगर मैं इसकी इसमें फाइल पे आऊं जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, तो ज़ारिबुन ज़ारिबानी ज़ारिबूना ज़रबतुन ज़ुर्राबुन ज़ुर्रबुन ज़ुरबुन ज़ुरबाउ ज़ुरबानुन ज़िराबुन अज़राबुन ज़ुरूबुन ज़रबुन ज़ुवैरिबुन। अगर मैं इससे भी हट के आ गया हूं जिसे कहते हैं सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें मफ़ऊल, तो मज़रूबुन मज़रूबानी मज़रूबूना मज़रूबतुम मज़रूबतानी मज़रूबातुम मज़ारीबु मुज़ैरीबुन व मुज़ैरीबतुन। ये मुस्तकिल आगे चल सकता हूं। सिर्फ मैंने इसको मुस्बत पढ़ा है, पॉजिटिव पढ़ा है, अभी नेगेटिव ला यज़रिबु लम यज़रिब लै यज़रिबा मैंने नहीं पढ़ा। ये अरबी जुबान की फॉर्म है जो इंग्लिश की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो इसके बगल में आ जाए। ऐसे हमें कहते हैं कि मौलवियों के सामने ये उलूम मुश्किल है। क्या मुश्किल है?
द पर्ल मैंने बीए में पढ़ी थी और द पर्ल को हिफ्ज किया था कि इसमें 5 एम्बिशन क्या है, क्विटीटो क्या है, कीनो क्या है, जोआना क्या है। ये मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ अपने नंबर नहीं बना रहा, नंबर मुझे मेरे असातिज़ा ने दिए, मैं समझा रहा हूं कि उलमा के लिए ये फील्ड भी मुश्किल नहीं है। ये ना समझे कोई मुश्किल है। जब आप आलिम बनाकर, हाफिज बनाकर यूं मदारिस से निकाल के आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लेकर जाएंगे, दिन रात का फर्क होगा, मौलवी यूं पढ़ के दिखाएगा। मसला शसला कोई नहीं है। मैंने जब पोजीशन ली तो मैंने वहां उस दिन जानबूझ के तहबंद पहन कर गया था, आम दिनों में शलवार, उन दिनों तहबंद पहन कर गया। इसमें इनाम मिलेगा। मैंने कहा जी डेटा पा के आया, कोई लहा के तो ना है, मैं तहबंद पहन के आया हूं, कोई उतार के तो नहीं आया कि मैं कोई शर्म से सर झुका लूं। और मैंने ऐलान किया कि या आपने मुझे मेडल दिया है, या आपने मुझे इम्तिहान में कामयाबी का इनाम दिया है, सुनो मैं मदरसे की चटाई से उठ के आया हूं, तुम्हारा पोजीशन होल्डर बन के जा रहा हूं, जरा जुर्रत करो तुम छठा कलमा तो सुना दो। बुखार 104 तक करोने वाला थी, वैसे समझ आ जाएगा। छठा कलमा के, छठा तो बहुत दूर रहा, तीसरा नहीं आता लोगों को। यकीन माने दीन लावारिस नहीं है, लेकिन आपके जज्बे को उभार रहा हूं, आपके जज्बे की नब्ज पे हाथ रख रहा हूं। आप अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ कीजिए। और उलमा को जो रब्बुल इज्जत ने डिसिप्लिन दिया है, तंजीम दी है, नज़्म ज़ब्त दिया है, इस जैसा नज़्म ज़ब्त, संजीदगी, डिसिप्लिन आपको गैर उलमा में नहीं मिलेगा। मौलवी पुरअमन भी है, फिरका वारियत से पाक भी है, दीन का दाई भी है, और उसूल और ज़वाबित और मुल्की कानून का एहतराम करने वाला भी है। इससे बढ़ के आप नहीं दिखा सकते। ये 2019 में कराची था, इस्लामाबाद, उलमा ने आज़ादी मार्च किया या नहीं किया? कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया लाखों बंदे लेकर कराची से इस्लामाबाद तक, कैपिटल ऑफ द पाकिस्तान तक आए हैं। कोई एक गमला टूटा है? यार बात सच है तो फिर बोलना चाहिए। कोई एक गमला टूटा है? किसी एक दुकान का शीशा टूटा है? एम्बुलेंसेस को भी रास्ता मिल रहा, मेट्रो भी अपनी सफरों पर चल रही है। यार इसे कहते हैं एहतजाज, इसे कहते हैं स्ट्राइक, इसे कहते हैं जुलूस, इसे कहते हैं आईनी हक, फंडामेंटल ऑफ द राइट्स। जो हमें आईन और कानून हक देता है, उसको किस संजीदगी से हम लागू कर रहे हैं। तो उलमा के पास तो डिसिप्लिन है, उलमा के पास तो नज़्म ज़ब्त है, उलमा के पास तो बात मानने और मनवाने का हुनर है। आप कैसे कहते हो मौलवी इस तबके का उछूत है? आप मुझे कोई एक जगह तो दिखा दें जहां डिसिप्लिन से हट के उलमा ने काम किया हो। यहां तो नहीं है। मेरे दोस्तों, 5 बच्चे होते हैं किसी बंदे के, 4 माशाअल्लाह ज़हीन फतीन आला अफजल अशरफ, और एक बेचारा अकल से, कान से, आंख से थोड़ा गया गुजरा होता है। तो माँ बाप दोनों कहते हैं इन्हों मसीते घाल दिए, इसको मस्जिद भेज दे, बाकियों को स्कूल कॉलेज आप ज्वाइन करा लेते हैं। और सलाम है आपके मौलवी को जो इस बंदे, जो बिल्कुल ऐसे समझे पैरालाइज था बेचारा, इस पर मेहनत कर करके उसने तुम्हारी मस्जिद का इमाम बना दिया। आपने नहीं देखे नाबीना हुफ़ाज? मेरे उस्ताजुल कुर्रा हजरत कारी अब्दुस सुबहान, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, नाबीना थे। और खुदा की कसम जब तिलावत शुरू करते राह जाता हुआ आदमी ठहर जाता है। अल्लाह ने हुनर दिया था उस शख्स को, पढ़ने का अंदाज दिया। नाबीना है ना माँ बाप का, इसे मस्जिद भेज दो, इसे कौन पूछेगा। और वो है जिसकी किरात सुनने के लिए लोग यूं हाथ बांध के ठहरे हैं, कारी साहब आएंगे तो हमें पढ़ाएंगे। मेरे दोस्तों, इसीलिए आपकी खिदमत में कहता हूं, अल्लाह के लिए औलाद आप दीन पर लगाइए, औलाद अपनी दीन पर लगाइए। उलमा को रब्बुल इज्जत ने जो मकाम दिया आपकी औलाद को मिलेगा। कल आप अपनी उलमा औलाद के वालिद बनकर ठहरेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे दोस्त इरादा करते हैं, अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।